اگر ہم سمندر پار جائیں تو فتح سے پہلے ہر قدم کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کو یاد رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات تاریخ کا رخ بادشاہ نہیں، ایک سپاہی بدلتا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں شمالی افریقہ کے ساحل پر ایک ایسا شخص ابھرا جس کا تعلق نہ کسی تخت سے تھا نہ کسی شاہی خاندان سے۔ اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اموی خلافت مصر سے آگے بڑھ کر مکمل شمالی افریقہ کو اپنے نظم میں لا چکی تھی۔ اسلامی ریاست صرف فتوحات نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایک مستحکم نظام قائم کرنا اس کا مقصد تھا۔ اسی نظام نے طارق جیسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ انہی قبائل میں سے تھا جو صدیوں سے بیرونی طاقتوں کے ماتحت رہے تھے۔ اسلام نے انہیں صرف مذہب نہیں دیا بلکہ شناخت دی۔ طارق کی ابتدائی زندگی تفصیل سے محفوظ نہیں، لیکن اس کا کردار اس کی زندگی کی گواہی دیتا ہے۔ وہ ایک عام سپاہی کے طور پر اسلامی لشکر میں شامل ہوا، لیکن جلد ہی اپنی صلاحیت منوا لی۔ طارق کی سب سے نمایاں خوبی اس کا نظم و ضبط تھا۔ وہ حکم دینے سے پہلے خود عمل کرتا تھا۔ یہی وصف اسے دوسرے سپاہیوں سے مختلف بناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر اس پر خاص توجہ دینے لگے۔ موسیٰ بن نصیر جذباتی نہیں، انتہائی محتاط منتظم تھے۔ انہوں نے طارق کو صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ مستقبل کا قائد سمجھا۔ طارق کو بربر فوجی دستوں کی قیادت سونپی گئی۔ یہ فیصلہ فوجی کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی اہم تھا۔ مقامی آبادی اب اپنے ہی لوگوں کو قیادت میں دیکھ رہی تھی۔ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ ایک فاصلہ رکھتا تھا، لیکن یہ فاصلہ خوف کا نہیں، اعتماد کا تھا۔ وہ مشورہ سنتا تھا، رائے لیتا تھا اور پھر فیصلہ کرتا تھا۔ اسی دوران بحیرہ روم کے پار اندلس کے حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ وزگت سلطنت داخلی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ لزریق پورے علاقے پر مضبوط کنٹرول کھو چکا تھا۔ یہ حالات کسی فوری حملے کا نہیں بلکہ ایک محدود اور محتاط مہم کا تقاضا کر رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہ کسی بڑے لشکر سے پہلے صورتحال کو پرکھا جائے۔ یہ الفاظ طارق بن زیاد کے مزاج کی صحیح تصویر ہے۔ وہ جوش سے نہیں، سوچ سے لڑنے والا انسان تھا۔ شمالی افریقہ کے ساحل پر تیاریاں خاموشی سے جاری تھیں۔ یہ مہم نہ محض ایک جنگ تھی، نہ صرف ایک سرحدی اقدام۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو یورپ کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگر ہم سمندر پار جائیں تو فتح سے پہلے ہر قدم کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ قیادت تلوار کی دھار نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور امانت کو انصاف سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اندلس ایک مضبوط سلطنت نہیں رہا تھا۔ وزیگوت حکومت بظاہر متحد دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر سے سیاسی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش اسے کمزور کر چکی تھی۔ یہ کمزوری اچانک پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ برسوں کی اندرونی سیاست اس کا سبب بنی تھی۔ بادشاہ لزریق اقتدار میں آیا تو تمام اشرافیہ اس کے ساتھ نہ تھی۔ کچھ طاقتور خاندان اس کی مخالفت میں تھے اور یہی اختلاف ریاستی نظم کو توڑ رہا تھا۔ یہ حقیقت مسلم اور عیسائی دونوں مورخین بیان کرتے ہیں۔ اسی دوران اندلس کے جنوبی ساحل اور شمالی افریقہ کے درمیان تجارتی اور بحری رابطے پہلے ہی موجود تھے۔ یہ سمندر کسی اجنبی دنیا کو جدا نہیں کرتا تھا بلکہ دو معلوم ساحلوں کو جوڑتا تھا۔ یہیں سے ایک متنازع مگر اہم کردار تاریخ میں سامنے آتا ہے۔ اسے عموماً جولین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جولین کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ اندلس کا ایک مقامی گورنر تھا، جبکہ کچھ اسے بازنطینی مفادات سے جڑا ہوا قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس بات پر زیادہ تر مورخ متفق ہیں
कि वो लजरीक का हामी नहीं था। जूलियन का किरदार कोई रोमानवी दास्तान नहीं, बल्कि एक सियासी हकीकत थी। वो अपनी ताकत, अपने इलाके और अपने मफादात को महफूज रखना चाहता था, और इसी मकसद के लिए उसने शुमाली अफ्रीका से राब्ता कायम किया। ये राब्ता किसी फौरी हमले की दावत नहीं था, बल्कि मालूमात और इम्कानात पर मबनी था। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तारिक बिन ज़ियाद उन खबरों को जोश में नहीं लेता था। वो जानता था कि समंदर पार जाना सिर्फ फौजी नहीं, सियासी और इंतजामी फैसला भी है। इसीलिए उसने हर इत्तला को परखने पर जोर दिया। मूसा बिन नसीर ने भी बगैर तैयारी किसी बड़े लश्कर की इजाजत नहीं दी। उन्होंने पहले छोटे पैमाने पर सूरत हाल जांचने का फैसला किया। ये एक मोहतात और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली थी। इन इब्तदाई मुहिम्मात का मकसद फतह नहीं, बल्कि जमीन, मिजाज और रद्द अमल को समझना था। यही वो मरहला था जहां तारिक बिन ज़ियाद अहम किरदार अदा करने वाला था। ये अल्फाज तारिक की सोच को जाहिर करते हैं। वो किसी मुहिम को मुकद्दस ख्वाब नहीं, बल्कि एक अमली जिम्मेदारी समझता था। बहरे रूम के इस हिस्से में, जहां अफ्रीका और यूरोप सबसे करीब आते हैं, एक पहाड़ी चट्टान खास अहमियत रखती है। ये मकाम बाद में जबल तारिक के नाम से पहचाना गया। ये नाम किसी अफसाने से नहीं, बल्कि एक तारीखी हकीकत से जुड़ा है। ये वो जगह थी जहां तारिक बिन ज़ियाद ने पहली मर्तबा यूरोपी सरजमीन पर कदम रखा। तारिक जानता था कि महदूद फौज और नामालूम जमीन एक खतरनाक इम्तिजाज है। यही वजह है कि समंदर उबूर करना एक जज्बाती फैसला नहीं था। यह फैसला इत्तलात, तजुर्बे और मोहतात क़यादत का नतीजा था। अब सवाल यह नहीं था कि जाना है या नहीं। जब तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के साथ अंदलुस की सरजमीन पर उतरा, तो यह सिर्फ एक फौजी नकलो हरकत नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जिसके बाद वापसी का रास्ता आसान नहीं रखा गया। तारीख के मुताबिक तारिक बिन ज़ियाद ने गैर मामूली फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि वो कश्तियां जिनके जरिए फौज समंदर पार करके आई थीं, जला दी जाए। यह फैसला महज जज्बाती नहीं था, बल्कि एक नफ्सियाती और अस्करी हिकमत अमली था। कश्तियां जलने लगीं। लकड़ी और रस्सियों से उठता धुआं फौज के सामने एक वाज़ेह पैगाम था। अब पीछे हटने का रास्ता खुद खत्म कर दिया गया है। तारिक जानता था कि महदूद फौज अगर वापसी की उम्मीद में रहे तो मैदान जंग में पूरा जोर नहीं लगा सकेगी। यह फैसला खतरनाक भी था, लेकिन उसी में इस मुहिम की रूह छुपी थी। इसी मौके पर तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज से खिताब किया। यह खिताब तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ये अल्फाज सिर्फ जोश नहीं थे, बल्कि एक हकीकत की निशानदही थे। अगर तुम पीछे देखते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे। मैंने ये कश्तियां तुम्हें कैद करने के लिए नहीं जलाई, बल्कि तुम्हें तजब्जुब और शक से आजाद करने के लिए जलाई हैं। ऐ मेरे साथियों, समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन सामने। अब पीछे मरने का रास्ता नहीं, सिर्फ साबित कदमी बाकी है। मैं तुम्हें सोने या आसान फतह के वादे नहीं दे सकता, बस ये कहता हूं कि अगर हम मुनज्जम और साबित कदम रहें तो ये जमीन हमें कबूल करेगी। तारिक अपनी फौज को यह बावर करा रहा था कि अब हर सिपाही अपने फैसले का खुद जिम्मेदार है। यह खिताब एक फातेह का नहीं, बल्कि एक कायद का था जो खतरे को पहचानता था। तारिक जानता था कि असल जंग तलवारों से पहले दिलों में जीती जाती है। कश्तियों को जलाने का अमल फौज में एक खामोश तब्दीली ले आया। अब कोई पीछे नहीं देख रहा था, अब हर निगाह सामने थी। यही वो लम्हा था जब एक छोटा लश्कर अपनी नफ्सियाती कमजोरी खुद खत्म कर चुका था। अब मुकाबला नागुजीर था।
कश्तियों का जल जाना सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक ऐलान था, ये मुहिम अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। सन 711 ईस्वी, अंदलुस की जमीन एक फैसला कुन लम्हे के करीब थी। बादशाह लजरीक अपनी फौज के साथ जनूब की तरफ बढ़ रहा था। उसे मालूम था कि अगर उस हमले को यहीं ना रोका गया तो उसकी सल्तनत टूट सकती है। लजरीक की फौज तादाद में तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर से कहीं ज्यादा थी। मुआर्रिखीन के मुताबिक इस फौज में वज़गत अशराफिया, पेशावर सिपाही और इत्तेहादी दस्ते शामिल थे। लेकिन इस ताकत के अंदर एक बड़ी कमजोरी छुपी हुई थी, इत्तेहाद की कमी। दूसरी तरफ तारिक बिन ज़ियाद एक महदूद मगर मुनज़्ज़म लश्कर के साथ मैदान में मौजूद था। यह लश्कर तजुर्बाकार था लेकिन तादाद में कम। तारिक जानता था कि खुली जंग में सिर्फ जोश काफी नहीं, ये जंग सोच, सब्र और दुरुस्त लम्हे की थी। जंग का मैदान वादी लिका एक खुला मगर खतरनाक इलाका था। यहां गलत कदम पूरे लश्कर को तबाह कर सकता था। तारिक ने अपनी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। हर दस्ता एक वाज़ेह मकसद के साथ मैदान में उतरा। जंग का आगाज शदीद टकराव से नहीं बल्कि मोहतात पेशकदमी से हुआ। तारिक ने अपनी फौज को जल्दबाजी से रोके रखा। वो दुश्मन को ठिकाना चाहता था। लजरीक की फौज अपनी तादाद पर एतमाद कर रही थी, लेकिन यही एतमाद जल्द ही गलती में बदल गया। जंग के दौरान वजीगत लश्कर के कुछ हिस्से पीछे हटने लगे। ये पीछे हटना फौजी कमजोरी नहीं बल्कि सियासी इख्तलाफात का नतीजा था। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक लजरीक के मुखालिफ गिरोह जंग के दौरान मुकम्मल ताउन पर आमादा नहीं थे। यही वो लम्हा था जिसका तारिक को इंतजार था। अब ये वो वक्त है जब फैसला होगा। आगे बढ़ो और तरतीब ना तोड़ो। तारिक ने अपने महफूज दस्ते मैदान में उतारे। ये वो सिपाही थे जो जंग के आगाज से रोके गए थे, ताजा दम, मुनज़्ज़म और वाज़ेह हदफ के साथ। ये हमला अचानक था मगर अंधा नहीं। उसका निशाना दुश्मन का मरकज था। वज़गत फौज इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी। बादशाह लजरीक खुद मैदान में मौजूद था, लेकिन जब उसकी फौज टूटने लगी तो क़यादत भी कमजोर पड़ गई। इस लम्हे जंग का पलड़ा साफ तौर पर तारिक बिन ज़ियाद के हक में झुक गया। ये अल्फाज तारिक की सोच को जाहिर करते हैं। वो दुश्मन को खत्म करने नहीं, नज्म कायम करने आया था। जंग के इख्तिताम पर वज़गौत लश्कर मुंतशिर हो चुका था। बादशाह लजरीक या तो मारा गया या जंग के बाद गायब हो गया। तारीख इस नुक्ते पर खामोश है, लेकिन एक बात वाज़ेह थी, अंदलुस की मरकजी ताकत टूट चुकी थी और तारिक बिन ज़ियाद सिर्फ एक जंग नहीं, एक दरवाजा फतह कर चुका था। वादी लिका की जंग इख्तिताम नहीं थी, ये तो अंदलुस के दरवाजे खुलने का आगाज था। अब सवाल यह था कि फतह के बाद क्या होगा। वादी लिका की जंग के बाद अंदलुस की जमीन तारीख के सबसे बड़े मोड़ पर थी। तारिक बिन ज़ियाद अब सिर्फ फातेह नहीं बल्कि एक इंतजामी और अखलाकी कायद भी बन चुका था। फतह के बाद सबसे बड़ा चैलेंज फौजी नज्म कायम करना नहीं बल्कि मकामी आबादी के साथ एतमाद और ताल्लुक कायम करना था। ये वो जमीन थी जहां लोग वज़गौत बादशाहत के ज़ेरे असर थे और अक्सर मुस्लिम फौज को अजनबी समझते थे। तारिक ने अपने सिपाहियों को हिदायत दी, बगैर जरूरत के किसी पर जुल्म ना हो, मकामी मजहब और रिवायात का एहतराम किया जाए, जमीन और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। ये नुक्ता नजर इस्लामी अस्करी रिवायत के ऐन मुताबिक था।
जो फतह के बाद इंतजामी नज्म पर जोर देती है। शहर शहर तारिक की फौज निजाम कायम कर रही थी। मकामी रहनुमाओं के साथ मुशावरत भी जारी थी ताकि हर शहर पर अमन तरीके से हुक्मरानी हो।